Assalamu alaikum. I hope you all are doing fine. We are going to discuss the grammar representations today. So हम देखेंगे कि हमारे पास ग्रामर हमने टाइप्स ऑफ ग्रामर्स देख ली लास्ट लेक्चर में. दीज आर द टाइप्स, या आप ये समझ लें कि कैटेगरीज ऑफ ग्रामर, जिन जिन कैटेगरीज में ग्रामर फॉल करती थी. टाइप 0 ग्रामर, टाइप 1 ग्रामर, टाइप 2 एंड टाइप 3 ग्रामर. दिस वर द फोर, दिस वॉज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर्स, और उन 4 कैटेगरीज में आपकी ग्रामर जो है वो फॉल करती थी. अब हम देखेंगे कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो वी नीड अ वे टू रिप्रेजेंट द ग्रामर सो दैट वी कैन टॉक अबाउट दैम इन जनरल. यानी हमने ये तो बता दिया कि इस तरह की ग्रामर है, और हमने बहुत छोटी एग्जांपल्स की जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, वो बड़ी एग्जांपल नहीं थी. मैं ये कहूँगी कि हम किसी बड़ी लैंग्वेज को या एक कंप्लीट लैंग्वेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, बल्कि हमने ये सोचा कि भाई एक लैंग्वेज ए बना रही है, एक लैंग्वेज बी बना रही है, एंड दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग दैट वी कैन डू. सो जिस तरह जब मैंने आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ाए थे, या हम जब रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं तो उसमें भी जब हम चीज़ों को डील करते हैं, हम जो लैंग्वेजेस बनाते हैं वो एक्चुअली ऐसी लैंग्वेजेस कहाँ होती हैं जो एक्सेप्टेबल हों. तो अगर आप ये सोचें कि वो चीज़ें आप लोगों को थोड़ी ट्रिकी लगती हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं या ग्रामर्स हैं, सो व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग टू मेक द प्रॉपर लैंग्वेज दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय योर कंप्यूटर एंड इन विच यू कैन डू अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग एंड यू कैन मेक न्यू थिंग्स एंड न्यू सॉफ्टवेयर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द लैंग्वेज वुड बी अ लेंथी वन, एंड व्हेन द लैंग्वेज would be lengthy one, then it means that there would be a lot of grammar. Just think about one thing, that if you are you want to learn a language, like if you want to learn English, still you would see that there are a lot of grammatical rules, and we have bulks of books in which all the rules are written, and we have different rules, and we cannot just master all the rules in like 1 or 2 years even, if we want to master them properly. So similarly, even if we are native Urdu speakers, still we cannot say that we are the masters of the grammar of Urdu language. So why? Because grammar is a very big thing, but because these languages are spoken languages and it has a lot of literature and a lot of things, that is why we can say that their grammar is also very, very big. And the same, we cannot expect the same for our programming languages, because they are not informal spoken languages. These are the languages in which we do the certain work we do. All right, so if we are like doing that, we will have a little shorter grammar than the grammar for spoken English, but still we will have a lot of rules. I mean, more rules than we have studied in the examples, or we just study in our regular expressions or whatsoever we have studied. So when we need a lot of things, like a proper language which has, like, just say that it has 20 rules or 30 rules or 40 rules, 40 grammatical rules, तो क्या हम उन 40 grammatical rules को just इस तरह जिस तरह ये लिखी हुई है, let me get some example, just look at this, क्या हम उसको इस तरह grammatical rules इसी तरह लिख के हम उसको कर सकते हैं? Can we make us something like that? No, it's not possible. It's a very difficult thing. So we need, these were the categories of grammars के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, हाउ द रूल्स विल बी मेड. ऑलराइट, लेकिन अब हमने उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, दैट इज अनदर टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर लेक्चर, दैट वी नीड टू रिप्रेजेंट दीज ग्रामर्स. लेट्स से आई हैव मेड अ लैंग्वेज, आई हैव मेड अ ग्रामर, बट नाउ आई नीड टू राइट डाउन द ग्रामर so others can understand it. So how I'm going to write down the grammar? Okay, one thing is that I write down the grammar so you can understand it. Like, let's say that it's between humans. I write down the grammar, or I don't even write down the grammar, and I just write down the things in English language, and I say कि भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, this and that, and you just understand it because this is how the things work. All right, this is what I would be like telling you. Let's say I am just teaching you and I have made a new language and I just want you to understand that language, so I would just write down the grammar in any way, and I just want you to understand it. All right, so it can be in a higher language like in English, but what about
still it will be in higher language. But what about if you want the machine to understand the grammar and point out the mistakes? Then you need to be very careful about it. Now it's not between only humans, it is now involving the machine. So when it is involving the machines, you need to you need to be more careful about what you're going to make and how you're going to tell the machines. So right now, if I have made a language and I want you to understand that language, so you can, so alright, I just tell you that this is the thing, and you are going to make the words like that. So you understand that, all right, this is how I'm going to make words, this is how I'm going to make the sentences. But what you are going to do with this language, if you are I am a computer teacher, you are a computer student, and you are understanding that language, so you are going to use it anywhere. So if you are going to use it to make some software which is going to be used on some machine, it means that software needs to be compiled, that software will run. All right, so you need to make an executable file. So if you make an executable file, it means you also need to run it on a machine that will understand it कि हमने भाई क्या executable file बनानी है. That is the point, right? So अब मैं आपको बार बार in every lecture I keep on telling you the purpose of your subject as well. You will notice it, that in everything which we study, I just tell you that how it is related to your subject. I believe in one thing, that if you do not understand and you cannot find the relevance, whatever topic you are studying, with your subject, with its use, with its need, you don't find it interesting. I know many students still don't find it interesting, but I just feel like that when I was student, and I think every student questions that why we are studying this, what is the use of this thing. और अगर आपको सब्जेक्ट का यूज़ समझ आ भी जाए तो स्टिल यू जस्ट क्वेश्चन के ठीक है सब्जेक्ट का यूज़, जैसे दिस हैपन्स इन मैथ्स एज वेल, के बच्चे कहते हैं ठीक है जी हमें मैथ्स, हम पहले तो कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं हम मैथ्स क्यों पढ़ें. अब अगर भाई आपको बता दिए कि जी मैथ्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये वो, देन दे से अच्छा हम फिर इंटीग्रेशन क्यों पढ़ें, हम डेरिवेशन क्यों पढ़ें, हम थ्योरम्स को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मैथ्स, ये वाला मैथ्स हम कब यूज़ करेंगे, ये चीज़ें हम कब यूज़ करेंगे, वाई वी आर डूइंग दिस. और वो आपके सब्जेक्ट को नॉन इंटरेस्टिंग बना देता है. आप देखें कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो वो आपको बहुत अच्छी याद रहती है. आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल, एंड आई विल गिव द एग्जाम्पल ऑफ द मूवीज. यू विल सी दैट व्हेन you like it and you are very interested in it, that when once you saw a movie, I think you remember it your lifetime. बच्चों को I would say that with me as well, कि अगर कोई मूवी मैंने 10 साल पहले देखी है तो ये ज़रूर होगा कि मुझे उसकी बहुत बारीक चीज़ें याद नहीं रहेंगी कि एग्जैक्टली क्या क्या कौन सी इवेंट्स हुए, लेकिन स्टिल इफ समवन विल से तो मैं कहूँगी हाँ ये वो वाली मूवी थी, इसमें ये था ये था ये था ये था, या अगर वो लगेगी तो से हाँ ये तो मैंने देखी हुई है. बट दीज आर योर बुक्स एंड यू ओपन इट एंड यू से ओह ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, ये हमारी ही बुक का हिस्सा है. वाई? दिस इज अ वेरी ट्रू थिंग कि आप ऐसे ही करते हैं. कोई टॉपिक पढ़ कहते हैं ओह वाओ ये हमने पढ़ा था, कब हुआ था ये सब. तो उसके रीज़न क्या है? बिकॉज यू आर लेस इंटरेस्टेड इन इट. वट एवर इज बींग टॉट टू यू, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट. वाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड? पहली तो बात यह है कि आपको सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता होगा. दूसरी बात यह है कि आपको रेलिवेंस नहीं पता चलती. आप कहते पता नहीं हम ये क्यों पढ़ें, दुआएं कर रहे होते हैं अल्लाह करे ये सब्जेक्ट निकले, सेमेस्टर ख़त्म हो, बस किसी तरह जान छूट जाए. तो दिस इज़ नॉट द वे यू शुड स्टडी. और आई जस्ट ट्राई टू मेक रेलिवेंस ऑल द टाइम. जब आपको लगता है कि ये चीज़ें आपकी रेलिवेंट हैं, जो एक तो जो डिग्री आप कर रहे हैं उससे रेलिवेंट हैं, और एक जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो उसके टॉपिक्स हैं वो भी रेलिवेंट हैं या नहीं हैं, तो फिर आपको सबको नहीं, लेकिन आई वुड से दैट 70 to 80% स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है. दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू डू. ओके, सो अब यहाँ पे मैंने आपको एक लैंग्वेज समझा दी. आपने उस लैंग्वेज में अगर सॉफ्टवेयर बनाना है, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी तो वो कोई मशीन बनाएगी.
तो जो मशीन वो बनाएगी उसने उसको अंडरस्टैंड करना है। अगर उसने उसको अंडरस्टैंड करना है तो उसे पता होना चाहिए कि ये ठीक लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। अब वो ठीक लिखा गया या नहीं लिखा गया वो कैसे समझेगी जब तक उसे ये नहीं पता होगा कि आपकी लैंग्वेज की ग्रामर क्या है। तो फिर मैंने अगर आपको वर्बली ग्रामर बता दी है या किसी हाई लेवल लैंग्वेज में ये जिग्जा मिग्जा पजल बना के ग्रामर बता दिया तो दैट इज़ ऑफ नो यूज। आई नीड टू राइट इट डाउन इन अ प्रॉपर वे सो यू कैन अंडरस्टैंड इट, सो द मशीन्स कैन अंडरस्टैंड इट, एंड व्हेन यू मेक समथिंग इन इट, when you create something in it, so your machines accept it, make the executable files, and the things can work in a smooth way, right? So that is why we need the grammar representations, and that is why it is relevant to your compiler construction and your computer science. And if you feel like the whole it's a very core subject. Why? Because I mean, if you don't understand compiler, and if someone had never made any compiler, अगर किसी ने कभी compiler बनाया ही ना होता तो आपकी ये सारी जो आपकी आज तक की क्या कहेंगे उसको, टेक्नोलॉजी की जो हमारे पास रेवोल्यूशन है और जो हमने तरक्की की है, ये जो सारी प्रोग्रेस है, ये ना होती। कैसे होती? जब आपके सॉफ्टवेयर ही नए ना होते, सॉफ्टवेयर ही नहीं नए होते, फास्ट होते, कुछ चलता ही नहीं, तो आपकी ये सब तरक्की कैसे होती, ये प्रोग्रेस कैसे होती? सो दिस ऑल प्रोग्रेस, ये हमारी मरहून मन्नत है कि इसके कंपाइलर्स की, कि हमने एक कंपाइलर बनाया जिसने एक चीज़ को उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई और फिर हम उसको इंक्रीज करते गए, और साथ साथ टेक्नोलॉजी और साथ साथ कंपाइलर्स जो हैं वो उनका बहुत, यानी आप ये समझिए बहुत बड़ा हाथ है, और हम इसीलिए कंपाइलर्स को पढ़ते हैं और लोगों ने भी कंपाइलर्स को पढ़ा। सो दैट्स गुड थिंग। और so right now we need a way to represent grammars that we can talk about in general. For this we have some standard representation. So we have like 3 standard representation. Number 1 is Backus-Naur form, BNF इसे हम कहते हैं, ठीक है। A meta language BNF is widely used as a notation for grammar, alright, of computer programming languages, command sets and communication protocols, as well as a notation for representing parts of natural language grammar. So BNF is the most general representation scheme. ये हमारे पास एक मेटा लैंग्वेज है, यानी इसके अंदर हम ये देखें, जैसे एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, इसमें हम डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं कि हमने ग्रामर लिखनी किस तरीके से है। हमने अगर बताना है कि कोई रूल बन रहा है तो वो किस तरह रूल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन योर एग्जाम्पल दैट यू हैव अ सिंटैक्स एंड देन यू हैव रूल्स। सो वी यूज सिंबल्स, हमने बताया कि हम कौन से सिंबल्स यूज करते हैं, ये सब सिंबल्स हैं, इन सब की भी इन्होंने बताया हुआ है कि व्हाट आर देयर यूजेस। नाउ इफ आई यूज दिस लाइन सो इट मीन्स अल्टरेशन। ये अब आप देखें कि ये लाइन हमारे पास पीछे भी यूज हुई थी, आई जस्ट मेक इट रेलिवेंट। ये देखें यहाँ पे भी जैसे ये थी, ये अल्टरेशन थी, या ए आ सकता है, यानी स्मॉल ए कैपिटल ए या ए, और हमने कुछ एग्जांपल्स में भी इसको यूज किया था। कभी हम ये इससे रिप्लेस कर रहे थे और कभी हम इससे रिप्लेस कर रहे थे। वाई? बिकॉज हम इन दोनों के दरमियान उसको अल्टर कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास कंकैटिनेशन के लिए हम ये डॉट यूज करते हैं, और हम ग्रुपिंग के लिए ब्रेसेस यूज करते हैं, और प्रोडक्शन साइन है हमारे पास ये हमारा प्रोडक्शन साइन है, इट इज प्रोड्यूसिंग समथिंग। ऑलराइट, सो ऑल्सो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है कि हमारे पास ये दोनों प्रोडक्शन साइंस हैं। ये हमें ज़रा ज़्यादा एरो हमें ज़्यादा इजी लगती है, तो दैट इज़ वाई वी यूज़ दिस प्रोडक्शन साइन, बट स्टिल वी कैन यूज़ दैट प्रोडक्शन साइन एज वेल। सो अगर आप दोनों यूज़ करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट फील्स लाइक ईजी, इट लुक्स ईजी, इट्स ईजियर टू राइट, इसमें गलती कम है तो इसलिए हम इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन इसका मतलब यही होता है इज़ डिफाइंड एज, और इसका मतलब है और, ये जो आपका अल्टरेशन है, तो यहाँ पे उन्होंने आपको बताया। अब आप देखें कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है। एग्जांपल में हमने क्या लिखा है, सिंपल डॉट ई एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज टर्म, साइन, टर्म, सिंपल एक्सप्रेशन, ऑपरेटर, टर्म। अब आपके पास कोई सिंपल एक्सप्रेशन जो है वो एक सिर्फ टर्म भी हो सकती है, कोई साइन वाली टर्म भी हो सकती है, कोई सिंपल एक्सप्रेशन और एक कोई ऑपरेटर और फिर उसके साथ एक टर्म भी हो सकती है। लाइक वी हैव डिफाइंड अ वेरी स्मॉल थिंग इन इट। और अब हमने यहाँ पे ऑपरेटर का जिक्र किया, तो ऑपरेटर कौन कौन से हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वी आर ऑल्सो टेलिंग इट कि ऑपरेटर्स आर डिफाइंड एज प्लस का साइन हो सकता है, माइनस का साइन हो सकता है और हो सकता है। ऑलराइट, सो इफ वी आर सेइंग अनसाइंड इंटीजर,
So how unsigned integer could be? It could be a digit or it could be unsigned integer and a digit. Like it's just a definition. You're just telling that how unsigned integer can be written. Alright, so you will just see that this is how we make certain rules. हम इन्हें बढ़ाते जाएंगे तो rules बढ़ते जाएंगे. And if you really focus on certain things, so you will understand that in your programming language, if you have studied the C++, so OOPS and like object oriented programming, there are not a lot of things that you think about कि oh my god, if we are going to write down the grammar of this language, it could be very long. No, there are certain rules and actually we study the rules. जब हम कहते हैं कि मैं C language पढ़ रही हूँ, मैं C++ पढ़ रही हूँ, तो what I am actually studying? I am studying the grammar of that language actually. Alright, so the term enclosed in angle brackets such as terms are non-terminal symbols. Alright, they are non-terminal symbols. They are variable. It means कि यहाँ पे हम जो चीज़ें लिखनी है, term, simple expression, ये सब change होंगे, उनकी कोई value होगी. जब आप अपनी actual programming करेंगे तो यहाँ पे कोई actual values होंगी, like term could be any number or term could be like anything. Alright, so all other symbols shown in the boldface above, although it's not obvious for some characters such as minus in some browsers, are terminal symbols. जब आप किसी चीज़ को बोल्ड में लिखते हैं तो हमें वो बता रहे हैं कि वो टर्मिनल होते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, वो प्रॉपर सिंबल्स होते हैं. अब आप देखेंगे प्लस माइनस या जो और हमने लिखा हुआ है, दे आर फिक्स्ड, सो दे आर अनचेंजेबल. लाइक वी आर नॉट चेंजिंग देम, वी डोंट नीड टू चेंज देम एंड दे आर नॉट चेंजेबल. जैसे आपके पास भी कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स होते हैं, तो आपके पास नॉन टर्मिनल्स वेरिएबल्स होते हैं और आपके पास दूसरी चीज़ जो है वो कॉन्स्टेंट्स होती है. So if you think about them as variables and constants, तो आपके लिए उनको समझना और उनको लिखना और उनको डील करना बहुत आसान हो जाएगा. So the concatenation of the string is represented by juxtaposition of their description and the example above. Note that there is no space between sign and term. जहाँ पे आप देख लें कि ये इन दोनों के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, साइन और टर्म के दरमियान, और इनके दरमियान स्पेस है. But they are just telling you that how when you write down the grammar, you actually represent everything that is necessary for writing down statements in your described language, right? Alright, so note that the recursive definition in the last example above, there is a standard way of specifying sequence of elements in BNF and for describing nested syntax as this. अब यहाँ पे आप देखें कि let's say you are writing down the syntax for your if statement. So अगर आप देखें कि आप इसी तरह इन चीज़ों को पढ़ते रहे हैं ना, like आपको जब बताया जाता था that you are going to write down if statements, everyone just tells you when you read the books or the teacher is teaching you, they just tell you that you will write down the if, then you will start the parentheses, then you will write down the condition, then you will write down the commas, and then you will enclose it, then you will write down the statements and the else statements. And if you are using the switch statement, or you're using cases, or you're using like the inheritance, how you do the inheritance in C++ and all that stuff. Alright, so when you are doing these things, everyone just tells you the syntax, right? पर अब हम उस तरीके से हम लोग actually क्या करते हैं, we write down the statements. जब मैं अब लेट्स से कि मैं आपको प्रोग्रामिंग पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अगर मैंने आपको सिंटैक्स उसका समझाना है, आई राइट डाउन द एक्चुअल कोड, एंड आई टेल यू दैट दिस इज हाउ यू राइट डाउन द एक्चुअल कोड. बट इफ यू आर गोइंग टू टेल द कंप्यूटर अबाउट द ग्रामर, यू डोंट राइट डाउन द एक्चुअल कोड. इफ यू आर राइटिंग डाउन द एक्चुअल कोड, तो वो तो कोड है, वो तो रन होगा ना. आपने इफ की कंडीशन लगाई, इफ की स्टेटमेंट बना दी, अब आप उनसे कंप्यूटर मतलब आप अपनी मशीन को एक्चुअल कोड से तो नहीं समझा सकते, वो तो उसको एक्चुअल कोड के तौर पे डील करेगा और उसे नहीं पता कि उसने इसको किससे कंपेयर करना है. सो व्हेन यू नीड टू टेल योर मशीन अबाउट योर लैंग्वेज, सो राइट नाउ अब हमने इसको जब हमने अपने कंप्यूटर को बताना है दैट हाउ वी आर यूजिंग इट, सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन. सो दैट इज व्हाई वी नीड दीज रिप्रेजेंटेशन. सो यहाँ पे हमने देखें क्या लिखा है कि स्टेटमेंट these are actually pictures, तो दे सेलेक्ट होते हुए कभी कभी गलत हो जाती हैं. स्टेटमेंट, अब ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इज डिफाइंड एज अनकंडीशनल स्टेटमेंट. पहली तो बात यह है कि आपकी स्टेटमेंट ये अनकंडीशनल है, ठीक है, अनकंडीशनल स्टेटमेंट है, फाइन, वी डोंट नीड इट. अब ये सिंबल बता रहा है अल्टरेशन को, या फिर पहली बात तो यह है कि अनकंडीशनल स्टेटमेंट है, बात खत्म हो गई.
दूसरी बात यह है कि हो सकता है कंडीशन स्टेटमेंट हो, यानी आपकी स्टेटमेंट्स दो तरह की हो सकती हैं, कंडीशन या अनकंडीशन. सो यू आर टेलिंग योर कंप्यूटर वट एवर मशीन या आपका जो कंपाइलर है, आप उसे बता रहे हैं कि जी स्टेटमेंट हमारी दो तरह की हो सकती है. नंबर 1 इज कंडीशन स्टेटमेंट, नंबर 2 इज अनकंडीशन स्टेटमेंट. अगर तो अनकंडीशन स्टेटमेंट है तो बस ठीक है, खत्म हो गया. लेकिन अगर कंडीशन है तो अल्टरेशन में क्या है कि कंडीशन में क्या होगा, इफ इज अ टर्मिनल, इट्स नॉट चेंजेबल. बिकॉज जब आप इस तरह ग्रामर में लिख देते हैं तो यहाँ पे आपके ये कीवर्ड्स बनते हैं. नहीं, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे हम अपनी लैंग्वेजेस में हमारे कीवर्ड्स बनते हैं और वो कैसे लैंग्वेज को पता होता है कि वो कीवर्ड्स हैं. तो अब जब आप अपनी ग्रामर रिप्रेजेंट करें उसमें आपने इफ लिख दिया, ये आपका टर्मिनल है. बिकॉज इफ विल बी इफ एंड यू जस्ट टेलिंग देम कि ये स्टेटमेंट वाइज किस तरह चल रही है. यू अंडरस्टैंड. अब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा कि किस तरह आपकी लैंग्वेज जो है वो चीज़ों को एक्सेप्ट करती है. आई होप कि कुछ इंटेलिजेंट बच्चे ज़रूर ये सोचते होंगे कि भी अब हमारी लैंग्वेज को, कंप्यूटर को कैसे पता चला कि उसने इफ को ऐसे डील करना है और हमारी चीज़ों को डिफरेंट तरीके से डील करना है. सो वी आर एक्चुअली टेलिंग देम द रूल एंड दिस इज द वे वी टेल देम द रूल. सो वी जस्ट टेल देम कि इफ होगा और उसके बाद इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो नॉन टर्मिनल है, एक वेरिएबल है, एक्सप्रेशन होगा, जो भी एक्सप्रेशन है. अच्छा, अभी यहाँ पे भी हमने एक्सप्रेशन को लिखना कैसे है उसका सेंटेक्स नहीं लिखा. आपको पता है ना, आप जब इफ के बाद एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है. तो अभी हम उतनी बारीकी में नहीं गए, मैं भी आपको सिर्फ ओवरव्यू में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. फिर देन आएगा और फिर अनकंडीशन स्टेटमेंट आएगी, यानी इफ के बाद एक्सप्रेशन है और फिर देन आप एक स्टेटमेंट बता रहे हैं और वो अनकंडीशन स्टेटमेंट है क्योंकि कंडीशन पीछे गुजर चुकी है. ऑलराइट. या फिर ऐसा होगा कि आपके पास इफ के बाद कोई एक्सप्रेशन आएगा और उस एक्सप्रेशन की वजह से कोई अनकंडीशन स्टेटमेंट चल पड़ेगी, या फिर एल्स होगा लगा हुआ और फिर कोई एक स्टेटमेंट चलेगी और वो स्टेटमेंट भी क्या होगी, अनकंडीशन स्टेटमेंट होगी. या हो सकता है वो कंडीशन स्टेटमेंट हो तो फिर आपके पास एल्स इफ चल पड़े. ठीक है, लेकिन अभी आपने इतनी परेशान नहीं होना कि हमारा तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक सेंटेक्स नहीं, ये एक बड़ा ही जनरल सेंटेक्स है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमें बताया भी गया कि BNF सबसे पहले कब यूज हुई थी और उसके बाद है हमारे पास EBNF यानी एक्सटेंडेड BNF. तो अभी हम इसको स्टडी करेंगे, लेकिन ये वाला लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. ये अभी मैं आपके थोड़े से छोटे लेक्चर्स इसलिए बनाती हूँ, वीडियोस चंक्स में इसलिए बनाती हूँ बिकॉज दैट इट्स ईजी टू अपलोड, वरना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था अपलोड करने में एंड इट इज़ यूज टू टेक डेज. तो आई जस्ट मेक, और फिर ये है कि अभी आपको टॉपिक वाइज पता चलता जाएगा कि हाँ जी अब हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, हमने ये टॉपिक पढ़ लिया. तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सटेंडेड BNF को पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो.